income tax we move to GST. And there is no PPT presentation over here. I'll be just throwing some light on legal and practical aspects of GST litigation. As somebody has very rightly said, one of my favorite quotations, litigation is a machine, under tax particularly, litigation is a machine in which one enters as a pig. Litigation is a machine in which one enters as a pig and comes out as a sausage. And that pig happens to be the taxpayer only, poor fellow, not the tax professionals. Yeah. So, GST litigation, as you McLennan said, man is a thinking animal, a talking animal, a tool making animal, a building animal, a political animal, a fantasizing animal. But in the twilight of civilization, he is chiefly a tax paying animal. So we are all tax paying animals and we remain so. As is very rightly said, that death and taxes are the only certainties in the uncertain life. But I am sure all of us may be preferring death than taxes. Because death you die only once, right? It doesn't get worse day by day, unlike taxes. So with this some sober thoughts, let us come to GST. Lot of things can be said on GST. I can say, I've been speaking on GST right from 2014. It's an unfortunate thing what we are witnessing today. I had apprehended this personally at my level, that we might have taken a wrong step in the first instance. So, and just as it happens in life, here also, when you take first step wrong, sometimes it is very difficult to regain the balance. Right? So, today what we are witnessing as a tax professional, if I say, I am full-fledged into indirect tax, I don't do anything else. So, it's a sheer jungle raj. And with all responsibility, I am using this word. It's an anarchism at its worst under GST from the litigation perspective. And what scares is it is only a beginning. The real fun will start, fun for tax professionals, obviously. If you think that somebody thinks that he has seen the worst of GST, you have not seen anything of that. You have not seen anything. ये तो सिर्फ शुरुआत है ये. And therefore it's very very important कि litigation के जो अलग अलग aspects है, जिस तरह से हो रहे हैं, उसमें हमें careful रहना चाहिए, समझना चाहिए. You can't leave everything to the tax professionals. In fact, you should not leave anything to the tax professionals if you want to safeguard yourself. I'll be very frank with you. First of all, every second person is a GST expert in the country. Now, every second person. The first person who is not, he is a poor taxpayer who does not know anything. He is completely clueless. Right? And his only recourse is WhatsApp University. But he doesn't know that his expert advisor is also learning from WhatsApp University. So, this is what is exactly is happening now. The 3-4 important aspects, please keep it in mind when you understand about GST, and that should become your maybe some guiding searchlight slide. Fundamentally, GST is not different than excise and service tax. Keep it in mind. We professional may project it in whatever manner we want to. ये सब नया है, ये सब ऊपर है. Somebody from Mars or Uranus or Saturn has come. Some alien people have come and make out this law. Because that is our professional interest is in that. If we do not project it something very new, I really can't influence your mind. So, fundamental principles governing excise service tax, weight to some extent, they remain the same as far as GST is concerned. So don't look at it something new. It is known as a digital tax. वो सब ठीक है, उसकी implementation is a different matter.
The scale might have changed, the implementation methodology might have changed, but the basic principle, GST remains an indirect tax like excise or service tax or VAT. All indirect taxes are consumption tax. When we talk about consumption taxes, it means the burden, it is levied on the consumption of goods and services taking place in the economy. This is the economic concept. Okay, they are consumption tax. Right? It's a consumption tax. That's the economic concept. In a simpler words, it is supposed to be borne by the consumer. Indirect tax is supposed to be borne by the consumer, so you are passing on to the consumer. But the matter doesn't end there. If you are unable to pass on, then you pay as a businessman. Businessman is supposed to act as a conduit or in the employment in the government without salary for collecting the taxes on behalf of the government. You are acting as a pass-through, right? You collect, you pay to the government. And again, it is said, very rightly said, in this damn world, everybody works for the government, either on their tax roll or on their payroll. You are not on the payroll because you are not the Jamai son-in-laws of the government. Sarkari adhikari aap nahi ho. So you are on their tax roll. But ultimately you work for the government. So businesses are supposed to act as a pass-through, but for any reason business does not collect the tax leviable on its activity from the customer, from the recipient of the goods or services. If fails to collect, then the burden remains on business. You can't escape that burden. Now this is the fundamental principle governing excise also, service tax also, VAT also. Can you go and tell the court, okay, this is a consumption tax, my consumer has not paid, now I am saddled with the liability, I never knew that this was payable, but I was under impression this is exempted, so I did not pay. Now he has to bear this burden, so give me relief, ask him to pay me. No, you can't. Law does not help you there. So be very diligent about your tax liability. So third thing which is very important, and that is GST, like any other indirect tax, is a transaction based tax. Every single transaction is important for you. Every single transaction creates the rights in your favor and creates the obligations against you. You may do one single transaction, similar transaction, same transaction 100 times correctly, but you falter on 101st time. Your liabilities arise. You can't tell the revenue department, sir, 100 times तो बराबर किया है, एक बार छोड़ दो ना, एक गलती हो गई तो. No. And this character of GST being a transaction tax should never be forgotten. It has wider ramifications. And not only GST, I am talking about all indirect taxes. Excise, transaction based tax. Income tax is a gross blow base, right? You undertake the transactions across the year, throughout the year, purchase, sales, all sorts of transactions. Then you, at the end of the year, you decide your gross income, your net taxable income as per law, and pay the tax. And then after audit or scrutiny or whatever, individual transaction may come into the light which may become a dispute prone. But you are not determining your liability or rights individual transaction wise. Total sales, total purchase. GST is a transaction based. Every single transaction you have got to be alert. There is no escapement from there. Number one. And it is a destination based consumption tax, as this economic concept knows. It means where the consumption takes place, the liability arises. Therefore, exports are freed from the tax and imports are subjected to the reverse charge mechanism. Because in import, consumption takes place in India, in export, consumption takes place outside India. And therefore, there is, these couple of things, keep it in mind, totally. And before I start with the litigation aspects, and last thing, what really I have been witnessing, I wrote 4-part series in 2016. Between June and August, I write in Tax India Online, when model GST law came. And my title of my article was, that 4-part series was, it was not intended to be 4 parts, it got converted into 4 parts. So, was model GST law, is it a horror show? That was my title.
And I could see that things are not going the way, may not go the way it was expected. I had anticipated certain serious, the fallout of this law, the way it is being made out. And regrettably, I proved right and I proved wrong also. I proved right in many aspects. I proved wrong because I predicted this could be bad. I never knew it will be so worse. To that extent, I proved to be wrong. This mismatch, supplier running away, I had written in my articles at that time in detail. Right? And then I wrote another, that 7-part I am writing, but that's a 6-part series I have already written. GST supplier sins, recipient repents. वो पाप करता है और आप पश्चाताप करो. तो 6 पार्ट मैंने लिखे. I am concluding 7 part. So, but now, having said this, we cannot go back from here. We are on the point of no return as far as GST is concerned. We will have to make it work somehow or other. We will have to make it work. It's a combined joint responsibility. It is not my responsibility or your responsibility. It's all the stakeholders, policy makers, tax officers, taxpayers and tax professionals. It is their combined responsibility to make this work, because we can't go back now. So we'll have to make it work. Maybe the onus is more on we, the tax professionals, rather than anybody else. And what I am seeing is this: policy makers, draftsmen have done their jobs. Tax officers are doing their job in whatever mess they want to create or created. There are always black sheep in every sector, every industry. So trade, those businessmen, taxpayers are doing their job. They are also playing with the system. But if maximum mess which is being created under GST, if today somebody were to ask me, we the tax professionals are creating the mess. I'm very firmly of this view. It is we the tax professionals are creating. Most of us are actually looking at it as a golden opportunity of making money, without scant regard for the law or knowing the law, understanding the law. It's a golden opportunity. And I written in my article in 4th part, looking at this, expected state of affairs the scenario which might evolve under GST, we professionals might be licking our lips. These are my words. We might be looking at it as a goldmine of an opportunities. Totally. But I had cautioned at that time. Ultimately, I am also part of this society. And as a part of the society, today, I might consider myself as a beneficiary or future beneficiary of this horrible state of affair, which I might be visualizing. Might be, I will be earning out of this. But sometimes, or always, why sometimes, the dividing line between being a beneficiary and being a victim can be very thin and very deceptive. In a long run, it may boomerang on me. As a professional, it may, enrich me. As a part of the society, it can boomerang me. I may be paying the price and I might be paying also. I don't know that. So we professionals need not be. It is only when that gold mine became coal mine, वो कोयले की खान हो गई सोने की जगह, जब इम्प्लीमेंट हुआ और दिसंबर में या रिटर्न भरने के समय आपका टैक्स पेयर गोवा में घूम रहा है या फॉरेन घूम रहा है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट रात को 2 बजे स्क्रीन देवता प्रसन्न हो गए कि नहीं रिटर्न जाएगा कि नहीं, तब पता चला कि ये तो इजी नहीं है टोटली. बट एनीवे, so with this litigation, GST, again the overall provision structure of the litigation related provisions is no more fundamentally different from excise service tax, and it is different from VAT. इसलिए वेट वालों के नया है जो आपके लिए जोखिम है, because VAT people do not know much about this, but it is almost on the same pattern under excise and service tax. लिटिगेशन, डिमांड के लिटिगेशन जीएसटी में 3 सोर्सेस होते हैं. द वन इज ऑडिट, अनदर इज इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन,
थर्ड जो जीएसटी में इंक्लूड हुआ है, जो एक्साइज सर्विस टैक्स में नहीं था, इट इज अ लीगासी फ्रॉम द वेट, एंड दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न। सेक्शन 61 में ASMT 10 जो आता है वो, दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न। तो ये जो तीन है, ये तीन कैन अल्टीमेटली लीड टू द लिटिगेशन टोटली। नाउ ये जो तीनों है उसको समझना जरूरी है। Before that, please understand, two things are not there under GST. They were never there under GST. From 17 onwards, also, there is no assessment under GST. Please keep it in mind. आप जब वेट में रिटर्न फाइल करते थे, आपको वेट में असेसमेंट ऑर्डर आता था, करेक्ट, CST, ST वगैरह का। आप इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हो, आपको एक्नॉलेजमेंट असेसमेंट का 143 में आ जाता है, स्क्रूटिनी हो तो 148 में। एक्साइज सर्विस टैक्स में आपने कभी भी असेसमेंट ऑर्डर नहीं आया होगा कि आपने जो रिटर्न फाइल किया ER1 या ST3, उसका आपको कभी रिटर्न एसेस होके नहीं आता है वो। अनलाइक सम प्रोफेशनल्स माइट बी प्रोजेक्टिंग, आई हैव सीन ऑन दोस डेज कि जब रिटर्न मैन्युअल होता था तो टैक्स प्रोफेशनल यूज टू गो एक्नॉलेज करा के आके क्लाइंट को ये कहते थे कि देखो मैं एसेस करवा के लेके आया हूँ। इट इज़ ए प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी, आई हैव सीन दैट। GST में असेसमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। Number one, it was never there. We had it is all self-assessment. We were done away with assessment way back before 2000 in excise. So it was never introduced even under service tax also. Totally. So it's all online return. वो ऐसे ऑर्डर, वो रिटर्न्स को अगर आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर वेदर स्टेट या सेंट्रल ऑफिसर उसको अगर वो स्क्रूटिनी में ले एंड ही फाइंड सम डिस्क्रपेंसीज, देन ही विल इश्यू ASMT 10 नोटिस फाइंडिंग आउट द डिस्क्रपेंसीज अंडर सेक्शन 61। ये स्क्रूटिनी भी जो है वो स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, डोंट गेट वरीड बाय स्क्रूटिनी वर्ड, इट्स नॉट लाइक इनकम टैक्स स्क्रूटिनी वगैरह, वो कर रहा है और वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। ये प्रोविजन एक्साइज सर्विस टैक्स में नहीं था, ये वेट में था। ये वेट की लीगेसी है कि ही इज इशूइंग द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट इनिशिएशन ऑफ सम प्रोसेस विच माइट गेट इनटू लिटिगेशन, लॉन्ग टर्म लिटिगेशन। सो असेसमेंट नहीं है। सेकंड, GST में ऑडिट नहीं है, ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इट इज नॉट देयर, इट वाज नेवर देयर, ऑडिट वाज नेवर देयर। सेक्शन 35 रेड विथ सेक्शन 44, इसमें ऑडिट का टाइटल दे दिया था उन्होंने। GSTR 9 एंड GSTR 9C, 9 वो लोग फाइल करते हैं जो 2 करोड़ के नीचे है, उनको 9 भी फाइल नहीं करना है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में उनको 9 फाइल करना है, 5 करोड़ के ऊपर उनको 9 और 9C दोनों फाइल करना है। 9C इज नॉट अ ऑडिट रिपोर्ट, इट्स मेनली ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका डिस्क्रिप्शन ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। आप इनकम टैक्स में 3CD फाइल करते हो, इनकम टैक्स में आपका स्टेट्यूटरी ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, करेक्ट। इसे एक्चुअल ऑडिट जिसकी गाइडलाइन है, जिसके स्पेसिफिक प्रोविजंस है, इंस्टीट्यूट के अकाउंटिंग प्रिंसिपल की गाइडलाइन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। तो इट इज एवरीथिंग इज देयर। यू फाइंड मी वन सिंगल प्रोविजन और बोर्ड सर्कुलर कि ये GST ऑडिट आपके प्रोफेशनल CA या कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे या कंपनी सेक्रेटरी करेंगे, इसकी ये गाइडलाइन है, ये फॉर्मेट है, नथिंग इज देयर। 9C इज नॉट अ, 9C इज अ रिकंसिलिएशन। आप फाइल क्या करते हो रिकंसिलिएशन के साथ में? आपकी इनकम टैक्स में ऑडिटेड बैलेंस शीट है, वही तो फाइल करते हो आप। And when we talk about the reconciliation, every taxpayer worth his name used to do this reconciliation कि मेरा सेल टैक्स में टर्नओवर है वो मेरे एक्साइज के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं, इनकम टैक्स के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं। आपका ये 2000 ऑडिट होता था तब भी ये मैचिंग होता ही था। इट इज बिकॉज ऑफ दैट मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोविजन के ऑडिट वगैरह, अभी तो वो भी निकल गया लकीली, दैट यू प्रोफेशनल यूज टू मेक मेरी। बिकॉज इफ मैं अगर जिग्नेश भाई को ये कहूँ कि मैं आपका रिकंसिलिएशन करूँगा, 99C फाइल करूँगा वगैरह, ही विल नॉट पे मी 25,000 ऑल्सो। बट इफ आई टेल हिम कि आई विल डू योर ऑडिट, तो ही विल पे मी 1 लाख रुपीज। तो ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है, एंड आई हैव विटनेस ऑल दिस। Generally, I wouldn't say about much, but it took me practically 2.5 years to 3 years continuously in whatever I could do this to get this 2 crore exemption for GSTR 9.
आई वॉज फाइटिंग फॉर 10 करोड़. मुझे तो GST 9(9)(c) चाहिए ही नहीं, एनुअल रिटर्न वगैरह. इट शुड बी, वी नेवर हैड दिस एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 30 years इन एक्साइज और सर्विस टैक्स में. लो चल रहा था, इम्प्लीमेंट हो रहा था, रेवेन्यू अर्न हो रहा था, इकोनॉमी बढ़ रही थी. ये एनुअल रिटर्न की और ये जो है ना वेट की लीगेसी है. वी नेवर हैड, आई हैड टू फाइट फॉर दिस. नॉट लाइक बाय माई चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स, बट जो है वो है. आई वॉज फाइटिंग फॉर 10 करोड़. 10 करोड़ इन प्रिंसिपल बात हो रही थी, बट देन 5 करोड़ इनकम टैक्स में जो है उसके साथ में उन्होंने रिकनसाइल किया एंड फाइनली 2 करोड़ एग्जम्पशन दिया. And I was pained. I mean, I felt so sad that when my professional brothers, CA fraternity, they were upset कि exemption क्यों दे दिया. My client का अगर procedural compliance burden कम हो रहा है तो as a professional I should be happy or I should be upset. इनका कि नहीं आप क्यों डेलीगेशन कि नहीं आपने ये 9 वगैरह ये एग्जम्पशन क्यों दे दिया, हम तो ये ऑडिट करके आपको इतना रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं. इज इट ए जॉब ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट? और विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम विटनेस टू दिस. आप टैक्स ऑडिट 3CD वगैरह करते हो, 3CD क्या टैक्स कमाने के लिए करते हो? दे डू द ऑडिट, टैक्स ऑडिट होता है, ड्यूरिंग दैट सम डिस्क्रिपेंसीज इज फाइंड आउट, कंपनी में एक्सेप्ट एंड कंपनी पेज द लायबिलिटी एडिशनल. पर्पस वो थोड़ी है टैक्स लायबिलिटी प्रॉपर डिस्चार्ज हुई है कि नहीं, लेकिन वो एंगल से नहीं करते कि हमने आपको कमा के दिया. इट वॉज फाउंड आउट एंड दे एक्सेप्टेड. हाउ कैन आई क्लेम? और अगर मैं आज प्रोफेशनल डिग्री मैंने हासिल की है, फाइन, कमेंडेबल जॉब, बट हैज द गवर्नमेंट टेकन दैट ऑब्लिगेशन कि आपकी प्रैक्टिस की भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको काम मिलता रहेगा. वेयर वी हैव कम टू. So now discrepancy is ASMT 10 is the, so no audit as such, audit by the department. That audit is under section 65, जिसमें आपको first ADT 01 आएगा. I'll come to that. But before that ASMT 10 section 61 discrepancy, there are 12 meters, 12 parameters they have vector. Now everything is digital, everything is online, right? So everything is done by system. ASMT 10 जब आपके पास आती है वो discrepancies आती है, parameter 73, 74, 107, 108, स्टैंडर्ड 2A वर्सेस 3B. सप्लायर का इनवॉइस 2A में नहीं दिख रहा है, सो ITC इज नॉट अलाउड. आपने 3B में 25 लाख की क्रेडिट ली है, सप्लायर के इनवॉइस इज 2A में विच इज अ स्टेटमेंट. 2A इज नॉट अ रिटर्न, यू आर नॉट फाइलिंग 2A, इट वॉज अ ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न. सो 2A में आपकी क्रेडिट 20 लाख रुपया दे रही, तो आपने 5 लाख एक्सेस ली थी, ITC रिवर्स करो. सप्लायर इज NGTP, नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर, इसका RC कैंसिल हुआ है, ITC रिवर्स करो. आपका GST 1 और GST 9 के बीच में डिफरेंस है, सो देयरफॉर पे टैक्स. ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है. ये स्टैंडर्ड पैरामीटर जब आपके पास आते हैं, सो वो 2A वर्सेस 3B. वेरी शॉर्टली आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, टाइम कम है. 2A वर्सेस 3B, 2A इज नॉट द रिटर्न. नाउ तो 2B आ गया, सो नाउ दोस डिस्प्यूट शुड नॉट अराइज, क्योंकि 2B में देख के बाद आप क्रेडिट लेते हो. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल 2A was never it never came in 2019 only. अक्टूबर 19 में वो पहली बार नहीं आया है, 49/2019. It was always there in 17/2017. Nobody paid an attention to it. Otherwise वो 17-18 की डिमांड कैसे निकालेंगे 2A वर्सेस 3B के बेस पे? 18-19 की डिमांड कैसे निकालेंगे? Nobody paid an attention because हम सीधी इनवॉइसेस आते हैं और हम उसके बेस पे क्रेडिट ले लेते थे. 2A देखने की जरूरत ही नहीं समझते थे हम लोग. वो जब रूल 36 सब रूल 4 को जब उन्होंने अमेंड किया कि अगर सप्लायर का इनवॉइस नहीं अपलोड हुआ है तो आप 20% तक की क्रेडिट ले सकते हो, जो बाद में 10% हुई, तब सबने 2A देखना शुरू किया. इसका मतलब ये नहीं कि 2A कभी था नहीं. 2A was right from under rule 58, it was always there. Now 2A वर्सेस 3B के बीच में फर्क क्या है? अगर वो है तो इज दैट डिमांड वैलिड? व्हाट कुड बी योर रिस्पॉन्स? द रिस्पॉन्स कैन बी ओनली दिस कि अगर 2A और 3B में डिफरेंस भी है, उसके बेस पे आप ITC डिनाई नहीं कर सकते हो. और वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस में कौन से सप्लायर के ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, वो सप्लायर के ट्रांजेक्शन इनवॉइसेस कौन से है, वो सप्लायर का स्टेटस क्या है, उसने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, उसके सामने आपने कोई इंक्वायरी की है कि नहीं की है, वो एक्चुअली स्टैंड लेने की आपका राइट है.
यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट के हु आर द सप्लायर्स इन दिस डिफरेंस। वहां पे मैंने पहले कहा व्हाई, बिकॉज इट इज अ ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स। उसमें कौन से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है वो उनको कहना है, वो आपका काम नहीं है टोटली, बिकॉज लॉ डज नॉट अलाउ। देन अगेन व्हाई आई सेड वो ग्रोस ब्लॉक ईयर पे नहीं चलता है कि साल में 25 लाख की क्रेडिट 3B के हिसाब से, 20 लाख की क्रेडिट 2A के हिसाब से, 5 लाख डिस अलाउड। ये इनकम टैक्स नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको ये कहा एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन दे हैव टू फाइंड आउट, यू डू नॉट हैव टू डू द रिकंसिलिएशन। आप अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए करो अलग बात है, लीगली यू कैन आस्क हिम। सप्लायर DGRAM के हिसाब से सप्लायर वगैरह सब आ रहे हैं, दिस कैन बी अंडर नॉर्मल इनकम टैक्स सेक्शन 73 74 में भी सप्लायर RC कैंसल्ड है बिकॉज ही वॉज फाउंड टू बी नॉन जेन्युइन। नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर जैसी कोई टर्म नहीं है लॉ में। देयर कैन बी नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर, देयर कैन बी ए टैक्स पेयर हुज ट्रांजेक्शन कैन बी नॉन जेन्युइन। हाउ कैन बी देयर बी ए नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर? बट ये सब न्यू टर्मिनोलॉजी आई हुई है, बट दिस इज ए लीगल रिपरकशंस, राइट? तो RC कैंसल्ड है, DGRM ने रिपोर्ट दे दिया, वो एक टेबल के फॉर्म में आपके पास आ जाता है ASMT 10 के बाद कि वो NGTP है, कहीं बैठा है, आप मुंबई में बैठे हो, मुझे गुवाहाटी से पता चला है, वो गुवाहाटी का सप्लायर है, वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने मुझे बताया, EIU ने, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है, या फिर DGI कि भाई ही इज़ फाउंड टू बी नॉन जेन्युइन सप्लायर, तो मुझे ये रिपोर्ट मिली है, आपकी क्रेडिट गलत। डोंट गेट पैनिकी बाय दिस। Two things can only happen. Either transaction is genuine or transaction is not genuine, and only the recipient buyer will know that what he has done. सबसे पहले आपको वो नक्की करना है, because जो फ्रॉड है, GST is a very fraud prone tax. Is a very fraud prone tax. 13-14 types of frauds are tabulated under GST. I written that article in my चैम्बर में, मैंने 2018 में लिखा था मैंने, फ्रॉड्स अंडर GST ट्यूटोलॉजी। आई वॉज नॉट टीचिंग एनी बडी, आई वॉज जस्ट पॉइंटिंग आउट, एंड डोंट इवन आस्क मी व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड एंड हाउ दे आर कमिटेड प्लीज, ओके? बट क्रोज आर ब्लैक एवरीवेयर, कौवे सब जगह काले होते हैं। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, UK, ऑल आर लूजिंग बिलियंस एंड बिलियंस। हम यहाँ पे जिसको जो बोगस इनवॉइस कहते हैं, इन द वेट टर्मिनोलॉजी दे कॉल इट इनवॉइस मिल्स। मिल में पैदा होते हैं ना, उत्पादन होता है, दे कॉल इट इनवॉइस मिल्स। हमारे वहाँ उत्पादन होता है। यू सी, प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइस इज अ कॉटेज इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, करेक्ट? घर घर का वो गृह उद्योग है, घर में ही बनते हैं इनवॉइस, एंड इनवॉइस इज द लार्जेस्ट सेलिंग कॉमोडिटी इन दिस कंट्री। एवरीबडी नोज दैट। ये कोई आज की बात नहीं है, परापूर्व से चला आई है वेट में वगैरह में। इट इज़ ओनली बिकॉज GST में वो सरफेस पे आ रहा है, वहाँ पे वेट में होता ही था। बट हैविंग सेड दैट, इफ देयर इज एडजस्टमेंट, टैक्स पेयर हैज टू टेक कॉल अकॉर्डिंगली। इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू कंटिन्यू कि उसने टैक्स भर दिया है पेपर पे वगैरह। अगर जेन्युइन है ट्रांजेक्शन और वो सप्लायर फॉल्ट में है या फ्रॉड में है, यू कैन डिसाइड टू फाइट, देयर इज नो नीड फॉर दैट, यू कैन फाइट दैट। और ये जो प्रोविजन है सेक्शन 16(2)(c), that supplier should have paid the tax liability out in case or by utilizing admissible credit. That provision was never there in Senvet credit or Modvet in excise. क्या बोर्ड को पता नहीं था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कि इनवॉइस के प्रावधान? 86 में आई एंटर दिस फील्ड, इनडायरेक्ट टैक्स। उस समय डीम क्रेडिट थी, करेक्ट? फेरस नॉन फेरस मॉडल पे 720 रुपीज़ एंड 900 रुपीज़, नॉन फेरस 800, राइट? उस समय भी मैंने देखा था, मैंने 2 व्हीलर में 10 टन माल जाते हुए देखा है मैंने। और इनवॉइस एक जगह से आता है, माल दूसरी जगह से आता है, फैक्ट्री में उसके मैरिज होते हैं, राइट? तो दिस ऑल इन मच सोफिस्टिकेटेड मैनर, ईयर एंड में एकोमोडेशन बिल लिए जाते हैं, जो इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट है एकोमोडेशन बिल, क्योंकि हाइपोथिकेशन है, मेंटेन करना है, बैंक वाला पीछे पड़ जाएगा, तो वैल्यू मेंटेन करनी है, स्टॉक मेंटेन करना है। ऑन द फ्लिप साइड, अभी हम आगे बढ़ गए, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो अभी तो बड़ा बिजनेस करना है, IPO लाना है, तो टर्नओवर दिखाना है, तो बिल लेना है, बिल देना है, ठीक है?
होता रहता है. सो क्वेश्चन इज, अगर ट्रांजेक्शन जेन्युइन है और सप्लायर ने अगर कुछ भी कोई गलती की है तो यू आर नॉट सपोज टू रिवर्स दैट. लीगली यू कैन चैलेंज दैट एंड देन यू कैन आस्क फॉर कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सप्लायर. अगर उसका आरसी कैंसिल हुआ है तो वेदर इट वाज कैंसिल बाय सोकोस नोटिस, व्हाट इज द ऑर्डर, वेदर सप्लायर हैज चैलेंज इट. इफ चैलेंज किया है तो इसमें उसकी व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द थिंग. You cannot move only against the buyer, they have to first move against the supplier. Section 46, Section 73, whether notice has been issued to him also for recovery of the tax, because उसने टैक्स नहीं भरा है. आप सामने हो, बायर भागने वाला नहीं है, he is not going to run away. सप्लायर भाग गया है, उसको पकड़ने में उनको इंटरेस्ट भी नहीं है. ये पूरी प्रोविजन महालक्ष्मी डाइंग बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट की देन है. एक्साइज सर्विस टैक्स में दिस प्रोविजन वाज नेवर देयर. Mahalakshmi Dying was upheld by Honorable Justice D.Y. Chandrachud, who is right now Chief Justice of India. But Mahalakshmi Dying में Bombay High Court में in an exceptional happening, Maharashtra government had filed an affidavit कि भाई अगर हम सप्लायर को पकड़ सके और उसमें से there are lot many things they are given the assurances how they will move. They will move against the supplier. सप्लायर से अगर उनको कुछ भी अगर वो रिकवरी कर पाते हैं तो रिफंड विल बी गिवन टू द बायर्स ऑल्सो प्रोपोर्शनेटली और फुल विदाउट बायर फाइलिंग द रिफंड क्लेम. और लास्ट पैराग्राफ में महालक्ष्मी डाइंग में कोर्ट हैज एक्चुअली नोटेड दिस कि वी हैव टेकन नोट ऑफ द एफिडेविट फाइल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड वी एक्सपेक्ट दैट दे विल अडहियर टू दिस. वो प्रोविजन को सेक्शन 54 वेट महाराष्ट्र वेट एक्ट, वो प्रोविजन का आइडेंटिकल प्रोविजन यहाँ पे ले लिया कि सप्लायर डज नॉट पे द टैक्स, यू आर नॉट एंटाइटल्ड. एफिडेविट के एश्योरेंसेस सब भूल गए, वो साइड में रह गई है. टुडे इन एवरी हाई कोर्ट ऑन दिस इश्यू देयर इज अ रिट पिटिशन पेंडिंग. लीगली law cannot compel somebody to do the impossible. European Court of Justice, Optigen and others, and there are quite a few other judgments of European Court of Justice where it is very clearly laid down that if for the fault or fraud of the supplier, the buyer cannot be disallowed the benefit of VAT deduction. What we call ITC, they call it VAT deduction. There are many judgments on this. So depending upon the facts of the case, you can fight it and you can ask for everything. 9 versus GSTR 1 is a matter of reconciliation. The point is वो discrepancies को समझकर आपको क्या explanation देना है वो समझना है. वो discrepancies आप explanation देते हो, 9 out of 10 cases or 10 out of 10 cases, the officer will say your explanation are not found satisfactory. Right? Not found satisfactory, so therefore it gets converted into the next stage. और next stage आने से पहले क्योंकि वो common stage है, audit. When audit comes, section 65 में आपको पहले ADT 01 आएगी. ADT 01 is not a notice. It is only an intimation. We propose to undertake the audit. Please keep these records ready. Then audit is undertaken, and then come ADT 02 form में आपके observations. वो observation में जो भी उनके आपको उनको जवाब देना है. Section 65 subsection 6 में ADT 02 में आपको उनको जवाब देना है. Be very careful when you are giving the answer. ADT में भी you should be very careful. तो why again it's a common thing which I will be explaining. तो ADT 02 पे मैं रुक जाऊंगा. तो ADT 02 आपके explanation जो उनको not accepted, then it will be followed by section 73 demand or section 74 demand. ASMT 10 explanation not accepted. ASMT 10 is a notice, but it is description is a notice. It is not a show cause notice. It is only notice intimating the discrepancies. Matter can end there also. If he finds your explanation satisfactory, matter may not snowball into major litigation. Another important thing to be kept in mind is any communication coming from the department should not be treated as a notice. You should be firmly established. We professionals make the mistake. Obviously, I am from old school and I am trained in a very different manner. So, for me such confusion never arise. But please understand, every communication coming to you from the department, सीधा अपने consultant को phone करके बोलो साहब notice आया है, वो simple में भी later होगा. Even summons is also not the notice. Summons is only an intimation calling you under section 70. तो मन में से वो नोटिस का हाव निकाल दीजिए.
Psychologically, it will make lot of difference. He might be calling an information. ASMT 10 is a not a note. Notice means show cause notice. Simple. फॉर्मली अपने मन में एस्टैब्लिश कर दीजिए. सो कॉज नोटिस अंडर 73 और 74. तो एडीटी 02 सेकंड. थर्ड इज इन्वेस्टिगेशन विच नॉर्मली स्टार्ट्स विद समन्स. सेक्शन 70. समन्स के प्रोविजन सेक्शन 14 सेंट्रल एक्साइज एक्ट made applicable to service tax by section 83 of the finance act, section 108 of the customs act. They are all common. There is nothing new. Audit, nothing new. It is EA 2000 Canadian model which we adopted in 2000. तो इट इज EA 2000. मोर और लेस सेम है, थोड़ा स्कोप बड़ा होगा. कीपिंग द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द GST. नथिंग न्यू अंडर ऑडिट. सो समन्स लीडिंग टू इन्वेस्टिगेशन. समन्स में आपको स्टेटमेंट वगैरह देना है. दिस आर ऑल वेरी वास्ट सब्जेक्ट्स. आई कांट गो इनटू दिस, बट समन्स इज नॉट ए नोटिस. समन्स में चलो बुलावा आया है, राजा ने बुलाया है करके भागना भी नहीं है, पैनिक में आना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिले नहीं करना है. If they ask for the information, you can take your time. It is going to be take some time for compilation. Otherwise, give it. Statement record करेंगे तो सब ठीक है. I mean, I'm not going into that. Latest circular जो बोर्ड ने investigation के लिए issue किया है, DGGI वगैरह के लिए, it's a wonderful circular. I mean, it's a very unexpected circular. Keep it in mind कि what they can do or what they should not do. Last month में ही आया है वो circular. Okay? तो which is very important. तो ये समन्स. समन्स के बाद आपकी इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट के आधार पे अगेन इट कैन गेट इनटू सो कॉज नोटिस. तो 3 पार्ट हो गई. सेक्शन 61 ASMT 10, ऑडिट सेक्शन 65, सेक्शन 70 समन्स रेड विथ सेक्शन 67 इन्वेस्टिगेशन. दिस 3 कैन देन अल्टीमेटली लीड टू द डिमांड. बिफोर दैट डिमांड अंडर सेक्शन 60, 73 और 74, one more stage is there which is known as a pre-notice consultation, which is DRC 01A. कि जिसमें वो आपको वापस बुलाएंगे कि इट इज ए इंटीमेशन ऑफ एसर्टेनिंग द टैक्स लायबिलिटी पेएबल बाय यू. मौका देते हैं वो आपको. DRC 01A इज अगेन नॉट ए नोटिस. इट इज ओनली एन इंटीमेशन कि भाई दोनों साइड सामने सामने, बिकॉज दैट वाज द पर्पस. DRC 01A विच इज ए प्री नोटिस कंसल्टेशन इज बेसिकली उसके रूट से पार्थसारथी शोम की कमेटी के रिपोर्ट में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी टार्क, which submitted his report in 2014, and one of the recommendations of Dr. Parthasarthi, so our noted economist of our country, उन्होंने कहा था कि why there is so much of tax litigation in the country in direct tax and indirect tax. Both the sides there should be a mechanism whereby both the sides sit together before getting into litigating mode. And अगर डिपार्टमेंट अगर का केस अगर जो पार्टी एक्सेप्ट करती है तो SSC should close the case. If SSC का केस अगर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करती है, डिपार्टमेंट should not go ahead with the litigation. From this concept of pre-notice consultation came. Very noble concept. In practice, it became horrible exercise. It was never a part of the statute in excise, service tax or custom. It was implemented through board instruction 2015 followed by 2016. And we have judgments that if pre-notice consultation is not followed, so called notice is invalid. वो सब dispute चल रहे हैं. In GST, it is now accepted under Rule 142(1)(a. प्री-नोटिस कंसल्टेशन DRC 01A. अब DRC 01A में आप जब जवाब दो, प्लीज डोंट गेट इनटू द टू मच ऑफ ए एक्सप्लेनिंग मोड. यू शुड बी वेरी केयरफुल. ऑडिट के ऑब्जेक्शन में डू नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ एक्सप्लेनिंग मोड, बिकॉज 10 आउट ऑफ 10 केसेस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सो कॉज नोटिस. आपके एक्सप्लेनेशन, आपके एलिगेशन उन्होंने बता दिए, आपने एक्सप्लेनेशन सब गुड फेथ में दे दिए, उसने रिजेक्ट कर दिए, फिर सो कॉज नोटिस इश्यू करेंगे, आपके पास डिफेंस कुछ नहीं रहेगा. So you should be very careful and very sophisticated. I mean, very careful in what you are replying. What should not be. There is no point in getting into too much of explaining mode, and there should not be any denial mode also. And then comes section 73, 74. 73 is a normal period of limitation. Section 74 is a extended period of limitation, which was again on the same pattern. खाली 2 सेक्शन अलग अलग है. एक में 3 साल की इफेक्टिव टाइम लिमिट है, एक में 5 साल की इफेक्टिव टाइम लिमिट है. 5 साल की इफेक्टिव टाइम लिमिट कब होगी? जब इवेजन होगा. इवेजन बाय रिकोर्स टू फ्रॉड और विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट और विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. डिपार्टमेंट कैन गो बैक फॉर 5 years. The only difference, and which is a very serious difference between the erstwhile provision of excise and service tax and GST is, ये जो 3 साल और सर्विस टैक्स में 2.5 years 30 months था, एक्साइज में 2 years था, राइट?
दैट वाज ऑलवेज लिंक टू द मंथली और क्वार्टर हाफ ईयरली रिटर्न ड्यू डेट के हिसाब से। यहाँ पे दिस इज लिंक टू द एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। सो आज आप मान लो कि 23-24 का एनुअल रिटर्न अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो आप फाइल कब करोगे? 31 दिसंबर 24 के पहले। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एनुअल रिटर्न आप फाइल करोगे 31 दिसंबर 24, और 31 दिसंबर 24 से अगर उनको नॉर्मल पीरियड में कोई डिमांड निकालनी है विच इज इफेक्टिवली 3 साल, वो कैसे गिनना है? सेक्शन 73(2) में नोटिस शुड बी इश्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 months ऑफ द डेट फॉर पासिंग द ऑर्डर अंडर सेक्शन 73(10). सेक्शन 73(10) में ऑर्डर कब पास करना है? उनको 3 साल के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। सो 31 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2027 के पहले उनको ऑर्डर पास करना है। उसके 3 महीने पहले 30 सितंबर 2027 को सोकोस नोटिस इश्यू करनी है। और सेकंड 74 में इसी तरह से 5 साल, सो 31 दिसंबर 29 के पहले ऑर्डर पास करना है, उसके 6 महीने पहले नोटिस इश्यू करनी है, 54 मंथ्स। और इसलिए जो एक्सटेंशन जो सबने मांगा था एनुअल रिटर्न के लिए, हम फाइल नहीं कर रहे हैं, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रही है, दैट वाज द मोस्ट हॉरिबल थिंग टू डू, बिकॉज आप ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न का एक्सटेंशन मांगते गए और आपकी लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होता गया। नो, आई रोट 3 आर्टिकल्स ऑन दिस कि प्लीज डोंट आस्क फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एनुअल रिटर्न। एक ऑर्डिनरी टैक्स पेयर के लिए 7-7, 8-8 साल तक अगर डिमांड पेंडिंग रहे, आज 17-18 की डिमांड का पीरियड अभी एक्सटेंशन के बाद, वो एक्सटेंशन इनवैलिड है, वो इसको डिफरेंट नहीं, इट गोट ओवर इन सितंबर 23, 17-18 की डिमांड नॉर्मल पीरियड। अभी एक्सटेंडेड पीरियड तो पूरा ही नहीं हुआ है। बट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वी ओनली आस्क फॉर द एक्सटेंशन। सो तो ये लिमिटेशन पे ये सोकोस नोटिस रिप्लाई है। सोकोस नोटिस में और कुछ नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सोकोस नोटिस के साथ में DRC 01 आएगा। DRC 01 इज नॉट अ सोकोस नोटिस। DRC 01 इज ओनली ए समरी ऑफ द सोकोस नोटिस, इट इज नॉट ए सोकोस नोटिस। जो ऑर्डर पास होता है DRC 07 में, इट इज नॉट ए ऑर्डर, इट इज ए समरी ऑफ द ऑर्डर। सो DRC 01 एक फॉर्मेट में आएगा, आपको सोकोस नोटिस एक डिटेल में आएगी। अगर DRC 01 साथ में इश्यू नहीं हुई है तो दैट नोटिस इज नॉट वैलिड। और अगर सोकोस नोटिस जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में विदाउट एनी डिटेल्स इज कमिंग, दो एनेक्सर के फॉर्म में भले उसमें आया हो, इट इज नॉट ए वैलिड नोटिस। The law is now developed. We have been taking this ground. There are 3 major judgments on these. SRK Enterprises, Calcutta High Court and others, whereby they have said कि आप देखेंगे DRC 01 is not signed, क्योंकि वो सिस्टम से अपलोड होती है। They don't have a digitally signed, वो एनेक्सर तो कर लेते हैं, बट DRC 01 साइन नहीं होता है, ASMT 10 साइन नहीं होता है, DRC 01A भी साइन नहीं होता है। दिस इज इनवैलिड। यू कैन चैलेंज फ्रॉम देयर कि दिस आर अनसाइड। वो साइन नहीं कर सकते, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम को सुधारो आप। सेक्शन 169 डज नॉट अलाउ यू टू सेंड अनसाइंड सोकोस नोटिस, और फॉर दैट मैटर अनसाइंड समरी ऑफ द नोटिस। SRK एंटरप्राइज, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये जो एंड देन सोकोस नोटिस के रिप्लाई में you have to be very careful, because this is the only stage where you will be able to safeguard your interest. Take SOCOS notice, howsoever absurd it may be, take SOCOS notice with a pinch of salt, very seriously. As for me, the presumption is very clear. I fight every case for losing the case. That is the only presumption on which I work. 30 years में और कुछ सीखा नहीं हूँ मैं। Every case I am going to, my client is going to end up in tribunal or high court. मुझे खाली ऊपर देखना है कि प्रॉपर केस जस्टिस मिलेगा कि नहीं ऊपर, नीचे आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी जस्टिस। एंड इफ द ऑर्डर इज पास्ड, इट इज गोइंग टू बी इन माय फेवर, इट विल बी रिव्यूड एंड डिपार्टमेंट विल चैलेंज। सो बट मुझे नीचे रिप्लाई में सब कुछ देना है। आई कांट गो ऑन इम्प्रूविंग अपॉन माई रिप्लाई एट एवरी स्टेज। मे बी आई कैन डू एज अ टैक्स पेयर, बिकॉज एडिशनल एविडेंस, एडिशनल ग्राउंड, अपेलेट लेवल पे, इनकम टैक्स में भी वही है, एडिशनल ग्राउंड, एडिशनल एविडेंस आप कर सकते हो, बट देन मे बी ऊपर से अपेलेट अथॉरिटी आपको नीचे वापस भेजे 5 साल 10 साल के बाद। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सिमिलरली सोकोस नोटिस
binds the department right up to Supreme Court. It cannot go beyond the scope of the show cause notice. कितनी भी blunder क्यों ना किए, they are bound by the show cause notice. They cannot go. So you have to use your full ammunition at the show cause notice reply stage with a clear understanding nothing is going to be accepted and nothing is going to be read. But ऊपर को देख के करना है. Then you go to the appeal. Order पास होता है. Order के 3 महीने के अंदर अपील करनी है. 10% टैक्स की डिपॉजिट करनी है. इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन नहीं. इफ देयर इज ओनली इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन, सेक्शन 107 सब सेक्शन 6, 3 महीने के अंदर आपको अपील करनी है. वो अपील प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट होगी, ऑनलाइन होती है APL 01 में, और उसके 7 दिन के अंदर आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर देनी है जब फाइनल एक्नॉलेजमेंट होगा. राइट. नॉर्मली वी फाइल एंटायर अपील फिजिकली ओनली. अगेन वी डोंट फाइल ओनली सर्टिफाइड कॉपी, क्योंकि फिजिकल कॉपी देना है तभी आर्ग्यू कर सकते हैं प्रॉपरली. बट ऑनलाइन करने के बाद, क्योंकि वो क्या कहती है कि फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपको तभी मिलेगा जब आपने 7 दिन के अंदर ये फाइल किया है. नाउ हाई कोर्ट रिसेंटली देयर आर 3 जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट कि अगर 7 दिन में नहीं भी हुआ तो दैट डज नॉट मीन कि अपील डिले हो गई है. दैट जजमेंट हैज नाउ कम कि इट्स ओनली अ प्रोसीजरल थिंग. सो वन नीड नॉट वरी, बट ट्राई टू एडहियर टू दैट टाइम लिमिट. 10% आपको टैक्स का भरना है. अगर सिर्फ इंटरेस्ट या फाइन या पेनल्टी की डिमांड है तो आपको 10% भरना नहीं है. और बाद में कमिश्नर अपील जब अपील फाइल ऑर्डर पास करेंगे उसके 3 महीने के अंदर आपको ट्रिब्यूनल में जाना है, सेक्शन 112 में जाना है. ट्रिब्यूनल बनी नहीं है, कब बनेगी मुझे डाउट है. ओके. और भले प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए कल, 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑनरेबल जस्टिस मिश्रा रिटायर्ड, वो हो गए हैं. बट आई हैव माई रिजर्वेशंस और चैलेंज एंड एवरीथिंग इज पेंडिंग. हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. Assuming tribunal, तो there is a removal of difficulties order of 2019, 2018 1 number का order है board का, where very clearly mentioned कि your time limit for filing the appeal in the tribunal within 3 months will start from the date on which tribunal becomes functional. So जब मुंबई बेंच जब फंक्शनल होगी तो उसके 3 महीने के अंदर आपको अपील करने का टाइम है. सपोज ट्रिब्यूनल आती है 2027 में और आपका ऑर्डर पास हुआ है 2024 में, तो 3 महीने 3 साल तक आपका टाइम, आपकी अपील कोई करने की कोई गुंजाइश नहीं. आप करोगे 2027 में. डिपार्टमेंट कैन नॉट रिकवर एनीथिंग, दे विल नॉट रिकवर. एज पर द रिसेंट डायरेक्टिव ऑफ द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, यू कैन फाइल अ डिक्लेरेशन विद द डिपार्टमेंट कि वी इंटेंड टू गो इन अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर. दैट्स द एंड ऑफ द मैटर. उसमें दौड़कर शैलेश भाई की एडवाइस में आके हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि रिकवरी हो जाएगी, वो हो जाएगी. पीपल आर रशिंग टू द हाई कोर्ट. आई डोंट नो व्हाई. दे कांट रिकवर बिकॉज मेरी टाइम लिमिट शुरू नहीं हुई है अपील की टोटली. और उसमें वहां पे आपको और 20% भरना है ऑफ द टैक्स अमाउंट. यहाँ पे 10%. एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, कस्टम्स में फर्स्ट अपीलेट लेवल पे 7.5% था और सेकंड ट्राइब्यूनल लेवल पे अनदर 2.5%. मैक्सिमम 10%. यहाँ पे फर्स्ट अपीलेट लेवल पे 10%, अनदर सेकंड लेवल पे 20%, 30%. एंड ट्रेड इन इंडस्ट्री शांत है फ्रॉम द डे वन. आई हैव नेवर सीन एनीबडी रेजिंग देयर कंसर्न्स अगेंस्ट दिस. काफ़ी सारे यूनिट के सर्वाइवल दाव पे लग जाएंगे ये 30% प्री डिपॉजिट के कारण. और उसके बाद आपको हाई कोर्ट में जाना है. इसमें हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन इज एंटायरली देयर. एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स में इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जम्पशन, नोटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन में यू हैव टू गो सेपरेटली टू सुप्रीम कोर्ट. यू कांट गो टू हाई कोर्ट. यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है. You go to High Court, there is no deposit required in High Court, then you go to Supreme Court. So this is how the entire process works under litigation. But please take litigation under GST very seriously. ये direct tax से litigation से GST indirect tax litigation is entirely different. Entirely different. Don't take it with that as a professional also and as a taxpayer also. इनकम टैक्स में नॉर्मली यू रिलाई अपॉन योर एनेक्सर्स एंड एवरीथिंग, फिगर वर्क एंड कंप्यूटेशन वगैरह. वहाँ पे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन में करने की ज़रूरत नहीं आती है. ओवरऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स की होती है. अपील भी यू आर डिस्करेज फ्रॉम फाइलिंग दी अपील, वेरी लॉन्ग अपील. ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं है. यू हैव टू प्रूव एंड गिव एवरीथिंग एट द रिप्लाई लेवल. यू आर एंटाइटल्ड फॉर द हियरिंग. 75(4) में हियरिंग इज कंपल्सरी. It says hearing should be granted if asked for in writing or where an adverse order is contemplated. मौली डेवलपर्स में बॉम्बे हाईकोर्ट को समझाना पड़ा कि और का मतलब क्या है.
कि या तो हियरिंग राइटिंग में मांगी है तो देना है, और अगर हाई कोर्ट पार्टी ने नहीं मांगी है, दिस पीपल हैव बीन पासिंग एक्स पार्टी ऑर्डर, पर्टिकुलरली वेट अथॉरिटीज। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, अगर नहीं भी मांगी है बट अगर आप एडवर्स ऑर्डर पास करने वाले हो तो आपको देनी ही है। ये मतलब है 75(4) का। और 3 एडजॉर्नमेंट के ज़्यादा वो दे नहीं सकते। अगेन दिस इज नथिंग न्यू, इट इज कमिंग फ्रॉम एक्साइज सर्विस कस्टम से। 3 एडजॉर्नमेंट से ज़्यादा दे नहीं सकते। वी हैव 7 और 10 भी दिए, डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। लेकिन 3 एडजॉर्नमेंट पकड़ के चलना है। अगर एक ही जब डिस्पोजल की प्रॉब्लम आती है और एक ही हियरिंग इंटीमेशन में 3 साथ में डेट दे देते हैं, दैट इज नॉट वैलिड ऑल्सो। कि आप 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख को आ जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने 3 हियरिंग दे दिया आपको। दिस हैपन्स व्हेन दे आर अंडर डिस्पोजल प्रेशर। वैसे तो वो ये भी कह सकते हैं ना, 1 में से 31 में मैं कभी भी आ जाऊँ, तो 31 हियरिंग नहीं दिए उन्होंने आपको टोटली। सो all these aspects you have got to be very very aware of litigation, एक प्रोसेस, हाउ द प्रोसेस वर्क्स। देन माइक्रो लेवल पे तो समन्स के स्टेज पे क्या होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग पे क्या होता है, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन पे जो पैसे भरे, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में कोई पैसे भर दिए, वी शुड नेवर बी पेड, देयर कांट बी एनी रिकवरी विदाउट सो कॉस्ट नोटिस, अंडर वोट कम वोट में। इन्वेस्टिगेशन होता है साम दाम दंड भेद, समझाते हैं भर दो, क्यों लिटिगेशन में जाते हो। दंड की बात आती है, दंड की वही दिखाते हैं, बराबर है। लकीली इनडायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स में फांसी की सज़ा नहीं है। फांसी के नीचे की सब सज़ा सुना देंगे वो आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दंड की बात आती है, भेद नीति आती है, आपके बाजू वाले ने तो एक्सेप्ट कर दिया, आपके बायर ने तो एक्सेप्ट कर दिया, आप क्या मेरे साथ लड़ते हो, राइट। और दाम की बात आती है, दाम तो होता ही है, थोड़े मुझे दे दे, थोड़े गवर्नमेंट के दे दो, शांति से। बिकॉज वंस दे एंटर योर प्रीमाइसिस दे गो विथ आइदर बाय केस एंड केस, केस बना के जाते हैं, केस लेके जाते हैं, दोनों होता है। सो यू गो टू बी, नथिंग इज चेंज, द पॉइंट इज दिस, बट यू गो टू बी केयरफुल बिकॉज GST has now acquired another dimension, particularly with the VAT authorities who are not privy to, who are not familiar with the so-called notice culture at all. Or there are so many legal blunders are committed, you are free to exploit those legal blunders. So many. High courts are coming down very heavily on them every now and then. Right? So this is the overall how the system works. Keep it in mind. The actual tax reform will take place. I always say that. I have said it. I firmly believe mushrooming lawyers and mushrooming doctors. It's a sign of a sick society. जो सोसाइटी में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जाती है ना, वो फिजिकल सिकनेस है, और लॉयर की संख्या बढ़ जाती है ना, बढ़ती रहती है ना, वो मेंटल वीक सिकनेस है, राइट। सो तो ये द रियल टैक्स रिफॉर्म विल टेक्स प्लेस व्हेन वी टैक्स प्रोफेशनल बिकम टोटली रिडंडेंट। आपको हमारी जरूरत नहीं होगी एज ए टैक्स प्रोफेशनल। I don't know when that day will come or not. Otherwise, we know that I'm very clear in my view that we professionals, particularly tax professionals, we do not have our own intelligence too much. You may believe otherwise. We don't have. We survive because the government, the revenue authorities want us to survive. You know, गीता में, भगवत गीता में, योगेश्वरम वहाम्यहम, I am running your livelihood. That's one of the fundamental promise given by योगेश्वर, मामेकम शरणम व्रज। तो मैं तुम्हारा योगक्षेमम वहाम्यहम, I am running your livelihood। शायद ये इनडायरेक्ट केस में, पर्टिकुलरली टैक्स में, हमें योगेश्वर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कहती है I am running your totally. तो it's a different matter. I have never been able to fathom this irony. It's going on for decades and decades in this country. LIC का सूत्र है योगक्षेमम वहाँ, तो LIC ने तो योगेश्वर को साइड में कर ही दिया है कि आपको योगेश्वर की जरूरत नहीं है, तुम LIC के पास आओ, भले के मरने के बाद में आओ आप। बट एनीवे, दिस इज ए हिपोक्रेट कंट्री, तो होता रहता है ये सोसाइटी। तो नाउ, सो देयरफॉर बी केयरफुल। आई कैन ओनली प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि you will never be required to approach with the tax professionals. But if you have got to be, this is a compliance driven law, be careful. And
most important thing, the way things are happening, KYC you are all aware of, know your customer. Simultaneously, also implement KYS, know your supplier. Be very careful whom you are dealing with. And for God's sake, I'm not saying all of you are doing, I will only say that this is not the time to get into billing adjustment business. Tax department all over the world is much ahead in technology adoption and deployment than the taxpayers. Big Brother is constantly watching and analyzing. ये टाइम नहीं रहा है अभी कैश का और बिलिंग एडजस्टमेंट का वगैरह का. Howsoever may be the temptation, strong temptation, the cost will be, if you are not caught, you may consider yourself as a smart, one may consider, right? અને ભલે હજુ ચાલે છે છીંડે ચાયડો એ ચોર, બાકી બધા સ્માર્ટ, બધી વાત બરાબર છે, પણ this is not the time. We have come long way out of this. You don't know what is actually, you might not be aware of how this department is functioning, what type of coordination is going on. So please, whatever may be the temptation, bill na adjustment ma is not a time. At the end of the day, one single 2-3 ट्रांजेक्शन में आपने जो नहीं कमाया है ना, उससे 10 गुना आप दे दोगे टोटली. इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. एंड इंडियन इकोनॉमीज रियल ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट्स नाउ. वी आर जस्ट एंटरिंग, वी आर ऑन अ टेक ऑफ स्टेज, वी आर स्टिल टेक ऑफ पे है हम लोग. एज आई सी दैट वी 5 ट्रिलियन एंड 3 ट्रिलियन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. वी विल बी ऑन अ डिफरेंट स्टेटोस्फियर दिस इकोनॉमी. And the entrepreneurship जो this country के वो unbelievable है. So I see tremendous growth opportunities, but organic ethical growth is only the question of identify the opportunities and tap the opportunities. So परापूर्व से जो जिस तरह से धंधा करते आए हैं, चाहे ये 43BH हो, चाहे या ये हो, we have got to come out of this. Wish you all the very best. Thank you very much.